ભચાઉ તાલુકાના જંગીમાં સંત ધોમધકતા તાપમાં કરે છે તપસ્યા। ભચાઉ તાલુકાના જંગી ગામે પાબુદાદાના સાનિધ્યમાં સંતની સાધના। ભચાઉ તાલુકાના જંગી ગામનું પવિત્ર ભૂમિ જ્યાં દાદા મેકરણના બેસણા છે, ત્યાં ગામમાં આવેલ પાબુદાદાના સાનિધ્યમાં મધ્યપ્રદેશથી આવેલા સંત પંકજ મુનિ બાપુ દ્વારા આવા ધોમધકતા તાપમાં ચારે બાજુ છાણા પ્રગટાવીને સવારથી સાંજ સુધી ગોળકુંડાળામાં મુનિ વચ્ચે બેસીને તપસ્યા કરી રહ્યા છે। 2010-11ના વર્ષમાં પણ બાપુ દ્વારા તપસ્યા કરવામાં આવી હતી। મા આશાપુરા ન્યૂઝ દ્વારા જ્યારે બાપુને આ તપસ્યાનો ઉદ્દેશ પૂછવામાં આવ્યો હતો ત્યારે બાપુએ આ તપસ્યા માનવ કલ્યાણ અને દેશહિત માટે કરી રહ્યાનું જણાવ્યું હતું। વધુમાં બાપુએ જણાવ્યું હતું કે આવી અનેક સાધના તેઓ વર્ષ દરમિયાન અલગ અલગ જગ્યાએ કરતા હોય છે। આ પ્રસંગે લક્ષ્મીચંદ ચરાલા, શંકરભાઈ આહિર, જીવાભાઈ રબારી, રાઘવ ભગત, ગામના સરપંચ રણછોડ પટેલ સહિતનાએ દર્શનનો લાભ લઈને ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સ્ટોરી બાય વિનોદ સાધુ, મા આશાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ભચાઉ, કચ્છ। જંગીમાં પાબુદાદાના મંદિરના સ્થાનમાં જ્યાં દાદા મેકરણના બેસણા થઈ ચૂક્યા છે એવી પવિત્ર ભૂમિમાં એમ કહીએ તો કહી શકાય કે વાગડની ધરતી સંત સુરા અને સતીઓના પવિત્ર બલિદાનોથી મહેકી રહી છે। આ ધરતી પર મધ્યપ્રદેશથી આવીને એક ફક્કડ સંત પરમ શ્રદ્ધેય પંકજ મુનિ મહારાજ જેઓ અહીં જે ઉગ્ર અગ્નિ સાધના કરી રહ્યા છે, આ અદ્ભુત અને બેમિસાલ છે। વાગડની ધરતીની અંદર આવી 45 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ગરમી જ્યારે હોય એવા વાતાવરણની વચ્ચે પંકજ મુનિ આપ જોઈ શકો છો કે અગ્નિકુંડની વચ્ચે બિરાજમાન છે અને પોતાની તપ સાધના કરી રહ્યા છે અને જીવનના પરમ ધ્યેયને સાકાર કરવા, સિદ્ધ કરવા તેઓ ઘોર તપસ્યા કરી રહ્યા છે। આ અદ્ભુત છે, અવર્ણનીય છે, વિશ્વમાં અજોડ કહી શકાય એવું આ દ્રશ્ય છે। આ દ્રશ્ય જોઈને માથું વારંવાર પંકજ મુનિના ચરણોમાં ઝૂકી જાય છે। આ પવિત્ર ધરતીને વંદન કરવાનું મન થાય છે કે જે ધરતીની અંદર એમના બેસણા છે। મારી સાથે મારા મિત્ર કરમરિયાના સરપંચ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન શંકરભાઈ પુનાભાઈ આહિર છે, જેઓ મને આજે અહીં લઈ આવ્યા છે। હું એમનો પણ અત્રથી આભાર આ માટે વ્યક્ત કરું છું કે એમણે આ સંતના દર્શન કરવાનો મને સૌભાગ્ય બખ્શ્યું। મારી સાથે ભીખાભાઈ રબારી છે, જેઓ પણ એક ઉચ્ચ કોટીના વિસ્તારના અગ્રણી છે, એઓ પણ અહીં સતત હાજર છે અને તમે બધા પત્રકાર મિત્રો જે પ્રકારે અહીં આવીને આનું કવરેજ કરી રહ્યા છો, આપને પણ ધન્યવાદ આપું છું કે આપ એક શ્રેષ્ઠ કાર્યને વિશ્વના ચોકમાં મૂકી રહ્યા છો। આપને પણ પત્રકાર મિત્રો મારા હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન છે। આપણે આ સંતમાંથી પ્રેરણા લઈએ અને આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આમના તપોબલથી આ વિસ્તારની અંદર કોરોનાથી આપણને મુક્તિ મળે, સમગ્ર વિશ્વ કોરોનાથી મુક્ત થાય। આપણે તો વસુધૈવ કુટુંબકમને માનનારા ભારતીય લોકો છીએ, એટલે વિશ્વ આનાથી કોરોનાની મહામારીથી મુક્ત થાય। પ્રભુ બાપુના આ તપોબળના કારણે આ સમગ્ર વિસ્તારમાં ખુશાલી આવે એવી આપણે બાપુ પાસે એમના ચરણોમાં માથું નમાવીને વિનંતી કરીએ છીએ। આપ સૌનો ફરીથી ખૂબ ખૂબ આભાર। અને જે પ્રકારનું આ દ્રશ્ય છે, 21 દિવસથી અહીંયા બેઠા છે। ગઈ 13 તારીખથી 13 મેના દિવસે એમણે આ ઉગ્ર તપસ્યાની શરૂઆત કરી છે અને 4 જૂનના દિવસે એમની આ 21 દિવસની ઉગ્ર તપસ્યા પૂર્ણ થવાની છે। આવી ઉગ્ર તપસ્યા કરનારા તપસ્વીને હજારો નહીં કરોડો વંદન અને આ ભૂમિને પણ વંદન। ભીખા બાપા, આપ પણ ભાગ્યશાળી છો। અહીં બેઠેલા તમામ મારી સાથે ઊભેલા બધા જ વ્યક્તિઓ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવા સંતના આપણે દર્શન કરી શકીએ છીએ, એમનું સાનિધ્ય આપણે મળી શક્યું છે। ખૂબ ખૂબ વંદન। ભારત ભૂમિ આવા સંતો અને મહંતોના શૌર્ય બલ પર, એમના તપોબલ પર ઊભી છે। ભારત માતાની જય। વંદે માતરમ। लोग हमारी भाषा में आश्रम जानना चाहते तो कहते हैं हमारी भाषा में मत पूछो फकीरों का ठिकाना कहाँ, मत पूछो फकीरों का ठिकाना कहाँ, जहाँ आसन जमा बैठे वहीं पहली बात तो मक्का उनका वहीं, यदि मानो तो यही स्थान। उसे हमारे 5-7 स्थान हैं जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ज़्यादातर जंगल विस्तार एरिया में पाए जाते हैं स्थान। हमारा नाम पंकज मुनि है। ये साधनाएँ हम लोग जब सबसे पहले संत बनते, उसके पहले ही जब एक घर से निकल कर संत बना जाता तो पहले नाम रूपांतरण करने के बाद, नाम परिवर्तन करने के बाद
उसके पहले सबसे पहले हम लोगों की चिता ही लगाई जाती है कि आज से समझ लो आपका जो पूरा नाम था, आपसे पहले जो थे तो उससे समझ लो आप डेथ हो गई, आपका एक नया जन्म है और नया जीवन है। आपको एक्चुअली किस तरह से शुरुआत करनी है, राष्ट्र बाबत, हमारे सनातन के बाबत किस तरह से आप साधनाओं का माध्यम आपको पकड़ना है, ये हमारी साधनाएँ होती हैं। अग्नि साधना, बारिश के दिनों में जलधारा साधना, चतुर्मास साधना जिसे एक जगह बैठना, सारी साधनाओं का मार्ग तो यही होता है, राष्ट्र विषय होता है, राष्ट्र कल्याण होता है। और हमारे ये रहता है कि सनातन के अंदर आज भी कैसी कैसी साधनाएं और कैसे कैसे संत पड़े हैं जो इस हार्ड तरह से साधनाएं करते। बोले अन्य धर्मों में सुनने में आता बहुत सारी साधनाएं होती है, लेकिन कुछ आज हमारे इसमें भी वैदिक में संत पड़े हैं कि उनसे भी कई गुना आगे हैं। और बहिर्ताप और अंतरताप, अंतर ऊर्जा और वैर ऊर्जा दोनों का तापमान क्या स्थिति में होता है ये मापना पड़ता है। वहाँ आप लोगों ने देखा तापमान एक्चुअली 45 डिग्री सिर्फ बाहरी तापमान है, लेकिन अग्नि जलने के बाद उसका तापमान कम से कम 92-95 डिग्री तक पहुँच जाता है, आपने अंदाजा हुआ। तो इस हिसाब से बहिर्ताप और अंतर, हमारी अंतर की ऊर्जा क्या है, ताप और बाहर का ताप। यदि हम सूर्य को समझे तो सूर्य बाहर से जितना इसका उत्ताप है कई के उसके केंद्र बिंदु पर बहुत शीतल और शांत होगा। उसके बाद हम बाहर की गर्मी को अपने गर्मी के अनुकूल मिलाते हैं कि दोनों का लेवल क्या है। ये सब साधनाएं होती है, प्रैक्टिकल की होता है, एक जैसे साइंटिस्ट अपना रिसर्च कैसे करता है और उसके बाद कुछ देश और राष्ट्र के लिए दे जाता है। इस प्रकार से हम लोग का एक प्रैक्टिकल है जो रिसर्च है चलते रहते हैं और तरह तरह की साधनाएं होती हैं। बापू, जब कोई संत ये साधना करता है तो लोग उसको साधना ही समझता है, पर उसका जो फल क्या होता है वो आप जरूर बताएं, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि इसके पीछे क्या फल मिलता है कि मनुष्य। देखिए एक्चुअली हमारे माइंड में फल की इच्छा और आकांक्षा बिल्कुल चाहे पब्लिक को रहना ही नहीं चाहिए। हमारी भाषा में कहते हैं कोई आशीर्वाद वाली घटना होती तो नाभि से नमन होता है तो हृदय से आशीर्वाद भी मिलता है। न देने वाले को पता चलता है और न लेने वाले को पता चलता है, एक घटनाएं बीच में घट जाती हैं, वो महत्वपूर्ण की बात होती है। नहीं, मैं ग्रेजुएट नहीं हूँ, एजुकेशन मेरा 7th क्लास ही है, 13 वर्ष की एज पे निकल गया। आपको लैंग्वेज या भाषाओं से ऐसा लग रहा होगा। हाँ, हमारे में पढ़ाई नहीं होती, कढ़ाई ज़्यादा होती है। वैसे मैं बहुत सारे IAS IPS मिलिट्री जनरल सबके साथ बैठना, मोटिवेट करना, साहस देना, गाइडलाइन करना, राष्ट्र विषय ऐसे बहुत सारे मेरे काम रहते हैं। इस कारण बहुत सारे लोगों के साथ बातें शेयर करने से इसलिए आपको लग रहा है ग्रेजुएशन है, पर ग्रेजुएशन नहीं हूँ मैं। बाबू, अभी जो आप कच्छ में आए हो तो अभी कच्छ में कितनी साधनाएं हुई और कौन सी कच्छ में मेरी करीब हमारे वीखा भाई ने 2010 में लाए थे, 11 में पहली साधना मेरी हुई थी, अग्नि साधना 41 दिवस की। इसके बाद आपके भुज के पास गंगेश्वर धाम है, वहाँ मेरी 4 महीने एक ही जगह बैठा हुआ था, एक ही आसन। आज भी मैं पिछले 19 से 20 वर्षों से न खाना न पीना न लैट्रिन न बाथरूम, नो क्रिया, ऐसी साधना है। सूर्य की किरणों से ही मैं बॉडी आज भी मेंटेन करता हूँ हमारी। और इस तरह की बहुत सारे तरह की साधनाएं होती रहती हैं। जो कुछ हमारे में बौद्धिक साधनाएं पाई जाती है, जैन परंपरा की साधनाएं भी और हमारे वैदिक की साधनाएं भी होती हैं। और लोगों को अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं, हर स्थिति में एक प्रकार से व्यक्ति कैसे निर्भीक बने, उसका आत्मविश्वास कैसे प्रबल हो। और हम यही संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति जब तक अपने आप को संभालता है तब तक ये परेशान रहता है, तब तक वो डिप्रेशन में रहता है। हमारे अंदर एक ऐसी घटना घटे, आत्मविश्वास जगे कि हम ईश्वरी सत्ता के सामने कुछ नहीं रखते तो इतना ही कह सकते हैं, अर्जी मेरी मर्जी तेरी, जा में तेरी रजा वा में मेरी मजा। हम अपने आप को उसके हवाले छोड़ दे तो एक हथेली पर फूल की तरह संभाल लेगा ईश्वर। सबसे बड़े हमारा आत्मविश्वास कैसे जगा, विल पावर कैसे हो। और सब व्यक्ति को मेरा यही संदेश है कि सम्मानपूर्वक जीवन, स्वाभिमानपूर्वक जीवन कैसे जिया जाए। कहते अहंकार नहीं चालू कर। व्यक्ति के लाइफ में मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अहंकार नहीं होना, निरहंकार था, लेकिन स्वाभिमान हमारा एक्ट होना चाहिए। स्वाभिमान हमारे सब कुछ आपके पास बचा कर भी यदि स्वाभिमान आपका खो गया तो सब कुछ होने का कोई लाइफ में मूल्य नहीं है। और सब कुछ खोकर भी यदि आपका स्वाभिमान कायम है तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण की बात है। बापू, अभी कोरोना में लोग बहुत से डर गए और मानसिक रूप से भी। हाँ, इसके लिए देखिए कोरोना भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन आप एक्चुअली अंदरूनी आप होपलेस न हो। अंदर आप हमारी स्थिति के विरोध में कितने आदि तूफान वावाजोड़ चले, लेकिन हमारी अंतर ज्योति ऐसी हो कि लोग कपती न हो, हमारी लोग एक अकंप हो अंदर। देखिए सबसे बड़ी निर्भीकता ही जीवनोत्थान का प्राण बिंदु। निर्भय व्यक्ति एक्चुअली अपना रास्ता स्वयं बनाता है। हमारे मगज में मस्तिष्क में किस प्रकार का दहशत या भय का छा जाना हमारी मनुष्य की समझ बौद्धिक क्षमताओं को चाट जाना होता है। ये भय को दूर से प्रणाम करके आदमी को निकाल देना चाहिए। यदि किसी प्रकार की दहशत घुस गई ना तो आपके अंदर एक होपलेसपन आ जाएगा। यदि बाहरी दहशत माइंड में आई
उसके तंतु घुसे तो आपकी पूरी बॉडी होपलेस हो जाएगी। तो हमें इस चीज़ों से निर्भीक, आप जितना निर्भीक रहेंगे उतना ही कोरोना आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप होपलेस हुए कि उसकी गिरफ्त में आए, हमें निर्भीक बनना है पूरी तरह से। आपे खरीद्या हसे कपड़ा हजार पण नहीं जोई होय लुगड़ा बजार। लुगड़ा बजारनी धमाकेदार ऑफर। લુગડા બજારની અવિશ્વસનીય બમ્પર ધમાકા ઓફર 2020 રજૂ છે। 999ની એક એવી 3 કુર્તી માત્ર ₹1200માં, કોઈપણ લેડીઝ જીન્સ નંગ 3ના માત્ર ₹1200, કોઈપણ લેડીઝ ટોપ નંગ 3ના માત્ર ₹900, ગર્લ્સ જીન્સ અને ટોપની જોડી માત્ર ₹600થી શરૂ, મેન્સ જીન્સ અને શર્ટની જોડી માત્ર ₹700થી શરૂ, બોયઝ માટે જીન્સ, શર્ટ, ટી શર્ટ અને શેરવાની સૂટ તથા કુર્તા પાયજામાનો ભરપૂર ખજાનો મળી રહેશે લુગડા બજારમાં। રેગ્યુલર માટે ₹199થી 399માં અનેક વેરાયટીઓનો ખજાનો જોવા જરૂર પધારો આપની જ લુગડા બજારમાં। મેન્સ માટે શેરવાની, કુર્તા પાયજામા તથા બ્લેઝર મળી રહેશે। સ્થળ લુગડા બજાર ફેમિલી શોરૂમ, અનમ રિંગ રોડ, ભુજ, કચ્છ।